evening, dear students. Today we will do the multiple choice questions for class as the basis of all computations for this chapter. So class, this means class and object chapter. Okay. So let us start. Starting with the first one. A variable which is common for all the objects of a class. कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि सारा ऑब्जेक्ट्स के लिए जिसका वैल्यू कॉमन रहता है? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, इंस्टेंस और लोकल. सो दैट विल बी स्टैटिक वेरिएबल. कल का वीडियो में भी बताए थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वाला वीडियो में. सेकेंड वन, अ वेरिएबल विच हैज डिस्टिंक्ट कॉपी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. सारा ऑब्जेक्ट्स के लिए डिस्टिंक्ट कॉपी रहता है. डिस्टिंक्ट कॉपी ऑफ व्हाट? वैल्यूज का डिस्टिंक्ट कॉपी. सो दैट विल बी नॉन स्टैटिक वेरिएबल. इसको जितना ऑब्जेक्ट से यूज करोगे ना उतना ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हो. मतलब एक ही वैल्यू में अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक ही वेरिएबल में, सॉरी वैल्यू में नहीं, एक ही वेरिएबल में अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हो. और वही स्टैटिक रहता है तो अलग अलग वैल्यू स्टोर नहीं हो पाता है, सेम ओवरराइट हो जाता है, सेम वैल्यू हो जाता है सारा में. सो आंसर फॉर 2 विल बी नॉन स्टैटिक वेरिएबल. Number 3, a keyword which is used to differentiate between member variables and local variables, that is parameters when they have same name. तो क्या आंसर होगा? फर्स्ट वन ए, दिस कीवर्ड. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है. नंबर 4, a variable which is declared outside all the functions in a class. कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो सारा फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर होता है क्लास के अंदर? दैट इज आवर इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल ऑल्सो मीन्स मेंबर वेरिएबल्स. ठीक है, सी इज द आंसर. नंबर 5, अ फंक्शन विच कैन बी इन्वोक्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट. इन्वोक्ड मीन्स कॉल्ड. बिना ऑब्जेक्ट का कौन सा फंक्शन कॉल होता है? स्टैटिक फंक्शन. इट कैन बी कॉल्ड just by writing the function name, or you can write one more syntax is there, or you can write class name dot function name, but you will not write object name dot function name. ठीक है, so A is the correct answer. अब देखो नंबर 6, केस स्टडी. A class is called a factory of objects because it is a collection, sorry, not because, it is a collection of variables and functions. It can contain member variables and local variables. It is a non primitive data type. तो ये क्लास के बारे में कुछ डिटेल बताया हुआ है. ठीक है, so read the detail. It is called factory of objects. It is a collection of variables and functions. It can contain member variables and local variables both. It is a non-primitive data type. ठीक है, read the paragraph above and choose the wrong option. Means what is wrong about the class? A, a class can be used to create multiple objects. ये तो true है, obviously it can be used. B, it can contain many user defined functions. This is also true. क्लास के अंदर तो बहुत सारा functions हो सकता है ना. They are only known as member functions. It is a inbuilt data type. ये false होगा. Inbuilt नहीं होता है. Inbuilt means primitive data type. तो क्लास primitive नहीं होता, यहाँ लिखे है ना. It is a non-primitive data type. So C is the answer. It is wrong. और D भी correct है. It is wrapping variables and functions. तो wrap तो करता ही है. wrap मतलब all together attach करता है variables और functions को. Number 7, assertion. An object is used to invoke a function. Obviously object तो ये काम करता है. It is used to call a function. Reasoning because it is an instance of a class. ये क्लास का इंस्टेंस है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट को कॉल करने में हेल्प करता है. अब बताओ which one will be the correct answer? Assertion and reasoning both are correct and reason is the correct explanation. पहला वाला ही ट्रू है. ऑप्शन ए इज आवर आंसर. अब देखो नंबर 8, assertion. A class is a factory of objects. ट्रू है. क्लास फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों है? बिकॉज इट कैन कंटेन सेवरल ऑब्जेक्ट. रीजनिंग, बिकॉज इट कैन बी यूज टू क्रिएट सेवरल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन ए होगा आंसर. असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देन नंबर 9, आइडेंटिफाई द डेटा टाइप विच इज ऑल्सो नोन एज कंपोजिट डेटा टाइप.
जिसको कंपोजिट भी कॉल करते हैं, कौन सा इसमें से है? रेफरेंस, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। कंपोजिट को हम लोग रेफरेंस भी कॉल कर सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रिमिटिव नहीं कॉल कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नाउ नंबर 10, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेक्स्ट क्या है? अ क्लास इनकैप्सुलेट डेटा मेंबर्स दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन necessary to represent the class and member methods that perform operations on the data member। ठीक है, फिर से रीड कर देते हैं। A class encapsulate data members that contains the information necessary to represent the class and member methods that perform operations on the data members। So what does the class encapsulate? class क्या encapsulate करता है? Information and operation? No, operation और इंफॉर्मेशन नहीं होगा। डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स, ये ट्रू होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सो व्हाट डज अ क्लास इनकैप्सुलेट? सेकंड वन, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। सी, डेटा मेंबर्स एंड इंफॉर्मेशन, ये भी फॉल्स है। मेंबर मेथड्स एंड ऑपरेशन, ये भी फॉल्स है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना एमसीक्यूज काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि और एमसीक्यूज नहीं बन सकता है, कोई भी बनेगा एमसीक्यू तो इसी तरह का बनेगा, सब रिलेटेड होगा इससे। ठीक है, सो दिस मच यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल द एमसीक्यूज। ठीक है, सारा को देखते जाओ जैसे जैसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिले मत करो, तुम लोग देख नहीं रहे हो, सिर्फ कुछ ही बच्चा लोग देख रहा है। सब एग्ज़ाम के दिन अगर देखोगे तो 200 से ज़्यादा एमसीक्यूज हो जाएगा, 200 से ज़्यादा, तो फिर कुछ भी याद नहीं होगा। इसलिए टाइम पे जैसे जैसे अपलोड कर रहे हैं वैसे वैसे देखते जाओ। ठीक है ना।